اور اس وقت آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. آپ بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت اس وقت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس جاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. بڑی خبر آ رہی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں بول کی اسکرین پر. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس وقت کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. آپریشن بنیان المرصوص خزدار میں دہشت گردانہ ملے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے. سفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. مزید جانیں تو نمائندہ خصوصی سلمان امان سے. جی سلمان بتائیے گا کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے. جی بالکل. جنرل سید عاصم منیر کی بطور فیلڈ مارشل جو پروموشن ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ آج پہلی کور کمانڈرز کانفرنس کی اور اس کے ساتھ ہی مارکہ حق والا جو آپریشن ہے اور اس کے علاوہ جو خوددار حملہ ہے اس کے بعد بھی آج یہ پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کور کمانڈرز کانفرنس کہی جاتی ہے جس کے اندر ملک کی موجودہ داخلی سلامتی صورتحال کا جائزہ دیا گیا. اور کانفرنس کا آغاز آپریشن بنیان المرصوص اور بلوچستان کے ضلع خزدار میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں کے اطالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی سے ہوا. اور اس کانفرنس میں واضح کر دیا گیا کہ یہ سفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی ہے، جس کے ذریعے 4 معصوم بچوں کی جان لی گئی اور اس کے علاوہ کئی بے گناہ افراد جو ہیں وہ آپریشن بنیان المرصوص سے پہلے بھارت کے حملوں میں شہید ہوئے. کور کمانڈرز کانفرنس سے نہتے شہریوں بالخصوص معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنائے جانے کو انسانیت کی بنیادی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ یہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے جس کو کسی صورت جو ہے وہ معاف نہیں کیا جا سکتا. فورم نے مارکہ حق کی شہداء کو بھی زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ بھارت کے بلا اشتعال جارحیت کا نشانہ بننے والے افراد نے قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس کے علاوہ فورم کا کہنا تھا کہ شہداء کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا. پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے اور رہے گا. اسی طرح کور کمانڈرز کانفرنس نے فیلڈ مارشل کے جو اسٹریٹجک ویژن ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی غیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے لیے ان کے ایک جو گراں قدر خدمات ہیں اس کو بھی بھرپور انداز کے اندر خراج عقیدت پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات کا احترام کیا. اس کے علاوہ فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر باضابطہ طور پر مبارکباد بھی پیش کی. کور کمانڈرز کانفرنس نے ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی کی جو صورتحال ہے، درپیش چیلنجز ہیں، سب کا جائزہ لیا اور جو مخصوص سیکیورٹی صورتحال اس وقت پاکستان کو درپیش ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیاب تکمیل کو بھی سراہا گیا اور مارکہ حق کے لیے ایک اور جو فیصلہ کن مرحلہ تھا آپریشن بنیان المرصوص، اس کی ہم بات کریں اس میں کامیابی پر بھی فورم نے کامیابی کو سراہا. اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو بھی ذکر کیا گیا، ان کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی جو خدمات ہیں اس وارفیئر کے اندر جسے ہم 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں، اس میں میڈیا نے بھی زبردست کام کیا اور اس کو سراہا گیا کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے، کیونکہ میڈیا نے، انفارمیشن واریئرز نے بھارتی پروپیگنڈے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہر پلیٹ فارم پر مقابلہ کیا اور جھوٹی خبروں، جعلی بیانیے اور جنگی جنود کے خلاف ریاست پاکستان کی جو قوت تھی اس کے لیے یہ باعث تقویت بنے. اس کے علاوہ پاکستان کے نوجوانوں کے جذبے اور متحرک کردار کو بھی سراہا گیا جن کی حب الوطنی اور جوش و جذبے سے قومی روح جو ہے وہ بھرپور انداز میں اجاگر بھی ہوئی اور قومی بیانیہ بھی ابھر کر سامنے آیا. اس کے علاوہ سیاسی قیادت کے ویژن کو، دور اندیشی کو مارکہ حق کے دوران جس طرح سے بے مثال قیادت فراہم کی گئی اس کو بھی ذکر کیا گیا اور قوم کی رہنمائی پر انہیں سلام بھی پیش کیا گیا. فورم نے بھارتی مسلح جارحیت کے خلاف جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے عوامل کو ان کی مرہون منت قرار دیا. اس کے علاوہ پاکستان کی مؤثر اور بروقت دفاعی ریسپانس کو بھی مثالی قرار دیا گیا کہ کس طرح سے پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے جواب میں ایک بروقت رد عمل دیا، ایک مثالی رد عمل دیا. اس کے علاوہ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی بقا کے لیے کسی بھی بیرونی جارحیت کا مکمل جو آپریشن تیاری سے مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. اس کے علاوہ طاقت کے استعمال اور دھمکیاں میز رویے کا جو بات کی جا رہی ہے دوسری جانب سے، اس کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہ ہونے کا عزم بھی کیا گیا. کور کمانڈر کانفرنس نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے
तमाम जरूरी इकदाम के अज़म का भी इयादा किया। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से इस वक्त देख रहे हैं कि फितना उल हिंद, फितना उल ख्वारिज सरगर्म है, उनमें पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी शुरा ने नोटिस लिया और कहा गया कि भारत एक जानिब खुद को दहशतगर्दी का शिकार जाहिर करता है, जबकि हकीकत में वो खुद दहशतगर्दी का मुर्तकिब है और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए भारत की जानिब से प्रॉक्सीज का जो इस्तेमाल है वो एक वतीरा रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी सूरत बैरूनी सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन के ऊपर, अपने अवाम की तरक्की और खुशहाली के ऊपर समझौता नहीं करेगा और इसकी इजाजत नहीं देगा। मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन के साथ दहशतगर्दों का, प्रॉक्सीज का, उनके सहूलतकारों का भरपूर मुकाबला किया जाएगा, भरपूर गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ मुकाबला किया जाएगा। और इसके साथ इंतशार और खौफ की जो फिजा पैदा करने के लिए बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, उनको कौमी अज़म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ जो है नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग भी अब दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस हैं, सहूलतकार हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, उन सबको मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद करने का अज़म किया गया है। इसके अलावा कोर कमांडर्स काउंसिल ने हालिया कशीदगी के दौरान इलाकाई सलामती और जो पाकिस्तान की ईस्टर्न बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है इसका जायजा लिया। मकबूजा कश्मीर का मामला जो है वो भी जेर बहस आया और जो इंसानी की खिलाफ वर्जियां वहाँ पर की जा रही है उसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। खित्ते में पायदार अमन के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी की फौरी तवज्जो और मौसर मुदाखलत की जरूरत पर भी जोर दिया गया और कश्मीरियों का जो हक़ खुदरादियत है उसकी हिमायत का इयादा किया गया। आर्मी चीफ ने तमाम रैंक के बुलंद हौसले, आला ऑपरेशनल तैयारियों, गैर मामूली की पेशा वराना सलाहियतों और पाकिस्तानी कौमी गैर मुतसलसल हिमायत को सराहा। उनका कहना था कि हालिया कामयाबियां अल्लाह ताला के फजलो करम का नतीजा है। आर्मी चीफ ने फोरम को यानी कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को दरपेश सलामती के खतरात के तनाजुर में आला तरीन ऑपरेशनल तैयारियों की जरूरत पर जोर दिया और कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने अंदरूनी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और कौमी सरहदों का महफूज बनाने के साथ साथ पाक फौज के करीबी के साथ पर एतमाद का इज़हार किया और इस हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं उन पर इकदाम को सराहा। उसका कहना था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतसलसल हिमायत को खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ही अफवाज पाकिस्तान की ताकत का सरचश्मा है। जी नुमाइंदा खुशमान अवान हमें इस हवाले से अपडेट करे थे, अपने नाजरीन को इस हवाले से आगाह करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अच्छा सलमान, यही बताएगा कि आगे की हिकमत अमली के हवाले से भी डिस्कशन किए गए इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आमतौर पर एजेंडा जो होता है वो मुल्की दाखिली सलामती के सूरत हाल, जो चैलेंजेस होते हैं उनका जायजा लिया जाता है और जो इस वक्त ऑपरेशनल रेडीनेस होती है, प्रिपेयर्डनेस होती है, उसका भी जायजा लिया जाता है। आप देखें कि आर्मी चीफ ने अपने खिताब में यही बात की है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी सिनेरियो दरपेश है उसमें जरूरत इस बात की है कि जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसको बरकरार रखा जाए और जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इशूज हैं, सियासी जो मामला हैं, उसके अलावा जो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी का मामला है उसके ऊपर भी इनका भरपूर अंदाज में जायजा लिया गया। और इस हवाले से कौमी क़यादत देखें आपने जो सियासी क़यादत है उसको भरपूर अंदाज में खराज क़ीदत पेश, खराज तहसीन पेश किया गया, उनकी गैर मुतसलसल अज़्म को सराहा गया। तो जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के उनका जायजा लिया जाता है। करंट सिचुएशन, फ्यूचर के अंदर जो चैलेंजेस सामने आ सकते हैं उनसे निपटने के लिए आर्मी चीफ ने इसीलिए जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उनको बरकरार रखने पर जोर दिया है। जी अच्छा सलमान, बताएगा जिस तरीके से हमने देखा खुजार में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, तो इस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट या कोई आगे की हिकमत अमली तैयार की गई है? जी, पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान को पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो फितना उल हिंदुस्तान है, फितना उल हिंद है, वो सरगर्म है और जो कॉल्ड बोल्ड बलोच नेशनलिस्ट या सब नेशनलिस्ट तंजीमें हैं ये दर हकीकत में इंडिया की प्रॉक्सीज हैं। कुलभूषण जाधव आपके पास जिंदा जीता जागता सबूत है प्रॉक्सीज का, नेटवर्क का। इसके अलावा और भी पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद है। तो पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि बलूचिस्तान में खासतौर पर जो गुलजार में कल जो अंदोहनाक वाकया पेश आया, मासूम बच्चों की जानें ली गई और जिस जालिमाना वहशियाना तरीके से बच्चों को निशाना बनाया गया उसको पूरी कौम कभी माफ नहीं करेगी। और यकीनी तौर पर कोई भी माँ बाप, चाहे वो बलोच हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बल्कि दुनिया भर में भी जहाँ कहीं भी जिस किसी ने भी वो वाकया देखा सुना, उसने यकीनी तौर पर इस वाकये के अंदर मुलव्विस अफराद के ऊपर लानत मलामती की होगी। और यही वजह है कि फौज पाकिस्तान की जानिब से आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस बात का अज़्म किया गया है कि जो भी लोग इस
जो भी अनासर सहूलतकार हैं, प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, जिन्होंने इस तमाम चीज को अमल दरामद किया, उनको भरपूर अंदाज के अंदर कुचला जाएगा, नीज़ तो नाबूद किया जाएगा और उनकी मौजूदगी पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन के ऊपर अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही अज़्म मुसम्मम है पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान के रियासती इदारों का, कि बलूचिस्तान के अंदर फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल हिंद, भारतीय प्रॉक्सीज, वो लोग जिन्होंने मोदी को अपना ईमान बेच दिया है, वो लोग जिन्होंने अपनी कौमी गैरत मोदी के पास गिरवी रखी हुई है, उनको किसी तौर पर माफ नहीं किया जाएगा। सलमान, आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पर फोरम की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की गई है और फील्ड मार्शल ने भी अपने तासुरात का इजहार किया है। क्या तासुरात थे उनके? जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो हालिया ऑपरेशन के अंदर बुनियाद मरसूस के अंदर मार्का हक के अंदर कामयाबियां हासिल की हैं, एक तरफ तो वो अल्लाह ताला के फजल करम का नतीजा है, उसके साथ ही फौज पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पाकिस्तान के अवाम की हिमायत से, पाकिस्तान के अवाम की ताकत से ड्रॉ करती है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की ताकत कौमी हिमायत और कौमी अज़्म और कौमी जज्बे में ही पिन्हा है और इसी के ऊपर आर्मी चीफ जो है पूरी कौम के मशकूर दिखाई दिए, अल्लाह ताला के भी मशकूर शुक्र बजा लाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है और जिसकी वजह से उनको ये तरक्की भी मिली है, रैंक भी मिला है, वो पाकिस्तान के दूसरे 5 स्टार जनरल बने हैं, दूसरे 5 स्टार फौजी कमांडर बने हैं। तो उनका ये कहना था कि ये तमाम तर कामयाबियां अल्लाह ताला की मरूद मेहनत है और वो जरूरी समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का जिसको सामना है अपनी तैयारियां बरकरार रखी जाएं, दुश्मन के किसी भी बात से निपटने के लिए हर लम्हा चौकस रहा जाए, क्योंकि इस वक्त जो सिक्योरिटी सिनेरियोज हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं। तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस मौके पर बड़े ही हम्बल दिखाई दिए। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, कौम की हिमायत और ताबुत पर भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। जी अच्छा सलमान, नहीं बताएगा दिफाई स्ट्रेंथ को बढ़ाने के हवाले से भी इस फोरम में डिस्कशन किए गए? जी बिल्कुल, ये चीजें तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ही इसी काम के लिए है और जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, जब पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स बैठते हैं तो वो इसी किस्म के स्ट्रेटेजिक नौयत के फैसले करते हैं, सिक्योरिटी से मुतल्लिक फैसले होते हैं, जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है वो की जाती है इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, फोरम्स के अंदर। और पाकिस्तान का ये फौजी लेवल के ऊपर, खबरी फौज के लेवल के ऊपर एक आप कह लें कि हाईएस्ट फोरम है जहाँ पर इस किस्म के फैसले, इस किस्म की डिस्कशंस होती हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ ने एक तो ऑपरेशनल रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस, अलर्टनेस बरकरार रखने के ऊपर जोर दिया और खास तौर पर आप देखिए माजी में भी जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है या जब कहीं पे भी आर्मी चीफ विजिट करने जाते हैं फील्ड के अंदर तो वो यही कहते हैं कि ऑपरेशनल रेडीनेस के साथ साथ जो बुलंद तरीन पेशा वराना मयार है उसको बरकरार रखे जा सके, क्योंकि जो वेपन्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, वो तो एक मशीन है। आप देखें कि भारत की जानिब से जदीद तरीन राफेल तैयारे लिए गए लेकिन वो काम नहीं आए। तो वेपन सिस्टम एक्वायर करना भी जरूरी है, वेपन सिस्टम्स को अपडेट रखना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो तैयारियां हैं, जो आपकी रेडीनेस है, आपकी ट्रेनिंग है, आपकी जो इंटरऑपरेटेबिलिटी है, इंटीग्रेशन है वेपन सिस्टम्स की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यकीनी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इन्हीं तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया और जो इस वक्त सिनेरियो सिचुएशन हमें दरपेश है उसको मद्देनजर रखते हुए ये तमाम तर जो फौजी नौयत के मामलात हैं, सिक्योरिटी नौयत के मामलात हैं, उनके ऊपर अहम फैसले भी किए गए हैं। जी ठीक है, नुमाइंदा खुद सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे, अपने नाज़रीन को भी इस हवाले से अपडेट करें। बैरूनी जारिया दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा के लिए अज़म का इरादा किया गया। पाकिस्तान ने वाक़े पर गैर जानिबदार इंक्वायरी की बात की, हमारे हाथ साफ ना होते तो कभी पेश न करते। फोरम ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और मुतारिक शराकत को तहे दिल से सराहा। आपको अपडेट करें इस हवाले से मार्का हक के शोहदा को ज़बरदस्त अंदाज में खराजे अक़ीदत भी पेश किया गया। उन्होंने कहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान अपनी कौम के साथ शाना बशाना खड़ी है। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।